Dear students, now we are going to talk about voice change. What do you mean by voice change? In Odia, voice change अर्थ voice अर्थ बाच्य change अर्थ परिवर्तन तमाना में बुझिबा voice change रो ओडिया बाच्य परिवर्तन जे पढ़िबा को बुझिबा हमें बाच्य परिवर्तन तो एमती ओडिया रे बाच्य परिवर्तन करा जाए सेमिति इंग्लिश रे मध्य बाच्य परिवर्तन करा जाए ताको इंग्लिश रे कहा जाए वॉइस चेंज जनरली वी हैव द आइडिया अबाउट एक्टिव वॉइस इन एक्टिव वॉइस देयर मस्ट बी स्ट्रक्चर फर्स्ट subject that is known is then verb then object the subject verb object this is the basic structure of active voice in active voice प्रथमे आसीबो subject तापर आसीबो verb तापर आसीबो object तो ए विषय रे हम जानि छु we have already about well known I do the work I subject do verb the work object the pattern is SVO এটা হচ্ছে एक्टिव वॉइस रो पैटर्न जते बेल कोनसी वाक्य when there is a sentence following the structure SVO then this sentence we may call active voice sentence because the sentence follows SVO. If you critically analyze the sentence, you can unable to find that the object always remain after verb. The object always remains after verb object. If the sentence follows with the structure, then it is a active voice sentence. For example, I do the work. Subject, verb, object. Now we have to change the active voice into passive voice. How to change the active voice into passive voice? Dear students, we should know about the rule of changing the active voice into passive voice. I do the work. Now I have to change. Sorry, you have to change this sentence into passive. First देखो मु मानिचे प्रथम object the work then is done by me. Difference. What is the difference between active sentence and passive sentence? The work is object, but in passive sentence the verb which is object take the place of first position the verb तबला हमें बुझिबा जते बेले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करबा हमको प्रथमे ऑब्जेक्ट को लिखिबा को पड़िबो व्हेreas in active voice we are writing the subject first but in passive voice we have to write object first then verb. As for the subject, we choose the verb do. But here, as for the object, we have to choose the verb. The verb is uncountable noun. So the all uncountable nouns take singular verb form. So the verb is done. The verb is done by me. I becomes passive. I becomes passive form. That means me. And me preceded by be. এবং me पूर्वरु by लागछ. So this is the structure, but this is the funda of the changing of active voice into passive voice. First object, then verb, then subject means passive form of passive
form of subject. Next, he makes cake. This is subject, this is verb, this is object. SVO pattern. So it is active sentence, active voice sentence. Now we have to change into passive. First we have to write first cake object. As per the object अनुसार आम भाव रूप तैयारी केक ऑब्जेक्ट सिंगुलर इज मेड रू मेड हम V3 is made by he the passive form him by he. Ramo build a house. Ramo gote ghar tayari kare. Now we have to change the active voice to passive voice. First we have to write that object a house. A house is a singular, so is built. So third form built. एवं by Ramo. Ramo तो passive form नहीं, से Ramo. तेणु a house is built by Ramo. So if you critically analyze all the sentence, you can conclude the structure of the passive voice sentence. Object is am are plus V3 plus by plus passive form of the subject. This is the rule for the simple present. You have to understand, we have to critically, we have to very vividly remember it, that this is the structure of simple present. Object is am are plus V3 plus by plus passive form of the subject. Ramo goes to market. First we have to find out whether the object is there or not. Subject, verb, market. We have to find out market is object or not. Market is not an object. Because if you generally we know about, हम जानी छे जे मार्केट को यदि हमें प्रश्न करिबा रामो कुआडे जाए उत्तर आइबो मार्केट किंतु आमे कहि परिबानी राम कोन जाए यदि कोन लगे कि प्रश्न आमे पाई पारुछु प्रश्न करि पारुछु এবং তার उत्तर पाई पारुछु ताहले जानिबा এটা ऑब्जेक्ट अछि देखो एटी राम गोस टू मार्केट এটা कदापि कोन लगे प्रश्न करि होबनी सो मार्केट इज नॉट ए ऑब्जेक्ट सो राम गोस टू मार्केट इज नॉट ए ऑब्जेक्ट जनरली goes is a lead verb. Go is a lead verb. So anything that comes after lead verb takes the complement. So go is a lead verb. Lead verb पर जे आसीबो सेटा कदापि ऑब्जेक्ट में we should know this is a complement. So market is a complement. तो जति ऑब्जेक्ट नहीं माने आमे या करि परिबा नै पैसिव जति करिबा market is gone by Ramo this is incorrect. देखो पैसिव कोइ परिबा नाही कहबार अर्थ होची पिला माने तमे प्रथमे ऑब्जेक्ट को चूज करबो ऑब्जेक्ट को चूज करि साला परे जाय कि पैसिव आडू गति करबो एवं देखिबो तमे एटा कोन टेंस रे जाउची सिंपल प्रेजेंट रे जाउची कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जाउची कि प्रेजेंट परफेक्ट रे जाउची कोन रे जाउतो देखिबो आमे जदि देखले सिंपल प्रेजेंट रे आज फर्स्ट टाइम पढुछु जदि एटा गोला सिंपल प्रेजेंट रे ता रूल होची आगे रे ऑब्जेक्ट इज एम आर plus V3 plus by plus passive from the subject. तो हम देखले तो जनरली हम कोन लाले ना ट्रांजिटिव वर्ब माने वर्ब पाखरे दे ऑब्जेक्ट थिबो तो ट्रांजिटिव वर्ब तो ट्रांजिटिव वर्ब ही केवल पैसिवाइज्ड करी हबो ता माने ट्रांजिटिव वर्ब को हमें पैसिव वॉइस रे परिणत कर परबा नले करि परबा नाही मु तो पे क्वेश्चन अरेंज करछि देखो क्वेश्चन फॉर पैसिव वॉइस दे ड्राइव ए कार. This is an active sentence. This is an active voice sentence. Why? Na sir subject अछि, verb अछि और object अछि. तेणु SVO पैटर्न को फॉलो करछि माने आगे सब्जेक्ट अछि माने हम ताको कहिबा कोन ना एक्टिव वॉइस ताको हम कोन करबा ना पैसिव वॉइस करबा. तो ये होछि ऑब्जेक्ट एटा को हम प्रथम लिखबा कोन लिखबा जाने हो ए कार लिखबा खाली गले कार लिखला परे एज पर द ऑब्जेक्ट we have to choose the verb form. And car is a singular. Can we लिखाई देखो is am are. कौन नबो ना singular is.
ए कार इज देखो ड्राइव अच्छी मु कहछि तुमको इज एमआर पर भीतर लागो तने इज ड्राइव थला हबो किसो ड्राइव ड्रोव ड्राइवेन ए कार इज ड्राइवेन बाय लिखिबा देर पैसिव फॉर्म कोन ना सर देर पैसिव फॉर्म दे दिस इज राइट ए कार इज ड्राइवेन बाय them next one children play football this is children subject this is play verb this is football object तुम तकलीफ होतबो जे सर हम जानिबा केते ऑब्जेक्ट देखो प्रश्न कर पिला माने कोन खेलंती ना सर फुटबॉल खेलंती तो ऑब्जेक्ट अछि तने हम ऑब्जेक्ट वाके लिखबा फुटबॉल कोन लिखबा फुटबॉल देखो फुटबॉल के सर पर हम भाग चूज करबा फुटबॉल टा एक वचन बहुवचन सर एक वचन तने इज अछि कोन एठी प्ले verb for football is played कौन है देना by children तो पैसिव फॉर्म नहीं तेनु by children नेक्स्ट वन टीचर टीचर्स इंग्लिश शिक्षक इंग्लिश पढ़ाते शिक्षक कौन पढ़ाते सब्जेक्ट verb ऑब्जेक्ट हमें कौन लिख प्रश्न कले तो अछि कोन ऑब्जेक्ट अछि इंग्लिश और आगे इंग्लिश लिखबा इंग्लिश लिख देबा इंग्लिश ता सिंगुलर ना प्लुरल ना कोन बसिबो ना इंग्लिश पर सर इज बसिबो तबे अछि कोन टीचर्स टीच रो था कोन टॉट इंग्लिश इज टॉट रेडी बाय टीचर इंग्लिश इज टीच बाय टीचर दे प्ले फ्लूट फ्लूट माने बंसी से माने बंसी बजांती कोन बजांती ना बंसी तार ऑब्जेक्ट अछि एटा अछि बी एटा सब्जेक्ट आगे फ्लूट आनिबा फ्लूट लिख देले फ्लूट दी फ्लूट सॉरी एटा लिखबा हम कोन ना दी फ्लूट लिख देले फ्लूट दी फ्लूट लिख देबा फ्लूट एक वचन बहुवचन सर एक वचन दी फ्लूट इज प्लेड बाय देम फार्मर टिल्स लैंड कृषक बिल्कुल हल करे ताम कोन करबा ना लैंड टा अनकाउंटेबल नाउन ऑल अनकाउंटेबल नाउन टेक सिंगुलर वर्ब फॉर्म तो लैंड इज लिख देल टिल नॉट टिल्ड थर्ड फॉर्म लैंड इज टिल्ड बाय फार्मर बुझिला पिला माने तो देन ओडिया रे कहबा से माने कार चलांती तब पैसिव रे कहबा कार चला जाए तांको द्वारा देखो चलांती चला जाए यदि कौन से वाक्य चला जाए खिया जाए करा जाए पढ़ा जाए तो जानिबो तुम एटा पैसिव रे कहै छी तो तुमको करि पड़िबो दे ड्राइव ए कार तुम निश्चय जानिबो एक्टिव वॉइस तो पैसिव कला बे स्ट्रक्चर को मन रखिबो ऑब्जेक्ट इज एमआर प्लस v3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑफ दिस सब्जेक्ट सेटा सदा कले ठीक हो द कार इज ड्रिवन बाय द football is played by children english is taught by teacher the flute is played by them land is tilled by farmer ता माने आमे देखिले कोन जे जे ऑब्जेक्ट थिबो सेही हम सर आमे कर परबा कोन पैसिव वॉइस बिना ऑब्जेक्ट रे पैसिव वॉइस संभव नै जेमिति म तुम कहल कि राम गोस टू मार्केट रे कदापि गुटे ऑब्जेक्ट नहे जानिबो केमति ना ऑब्जेक्ट को प्रश्न करबो कोन लगी प्रश्न करबो कोन लगी प्रश्न करी जानि पले उत्तर देबो ऑब्जेक्ट अछि एटा तो बुझिबा पय म कोची एमति गुटे किछि फटा नाही तो छुबा ट्राई करो देखो मोस्ट ऑफ केसेस रे एटा फेरबो मार्केट आउट प्लेस मार्केट दी प्लेस रे त कोदा देखो व्हाट नहीं प्रश्न कर वेयर लगे प्रश्न करबा तो टाइम मार्केट ए सब जो टाइम लगे को मार्केट थाय दे टाइम थाय कोदा बेडा सब पैसिव करि हबो नाही त म भाबु जे तुम पिला माने याको बुझि पारथिबो जदी किछि प्रॉब्लम होय मते याको कहिबो आ याको शेयर करबो आ याको देखिबो बलसे तो सांगरा तो शेयर कर देले से माने बुझि जिबे एटा जेतु कोरोना पीरियड चलछि तो हम ए प्रकार स्टेप लेके तो पाठ पढछु बुझिला तो हो थैंक्स ऑल।